हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। गाइस, आज हम क्लास 8 का वर्कशीट 5 करवाएंगे। एक बात कहना है कि मुझे बहुत दिन से कमेंट में ये बहुत सारे 8 का जो बच्चे हैं वो लोग कह रहे हैं कि सर नेक्स्ट चैप्टर करवाइए, बहुत दिन से अब चैप्टर 1 में पढ़े हो। तो बस देखो, मैंने पहले सोचा कि मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैंने सोचा इस चैप्टर में एक ही वर्कशीट बाकी था, वो है वर्कशीट 5। तो बस इसको खत्म करते ही मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो बिना देरी के लेट्स बिगिन। First question, find the square root of the following fractions. That first one given 324 by 361. So 324, this is the number. So first, actually I know this is the square of 18. So if you know it, you can write over there that 324 can be written as 18 into 18, that equals to 18. Directly you can do it. Suppose if you don't know the square of 324, then what to do? Just simply find out their prime factors. So 1s are 2, 6s are 2s are. Okay, done. Now 361, it is the square of 19, that also I know, but okay, no issue, just find out their prime factors. So 19 means 19 is a prime number, so you have to divide it by 19. 19 9s are 171, we all know this. So 9, so this is the number. So here we can write, and one more thing guys, I have to say the formula root over a by b, that can be written as separate. You can separate it, root a and root b. So you can separate the fraction. Suppose root over a by b means root a by root b. So I am going to apply this formula over here. So 324 by root over 361. Now 324 can be written as 1 2 2 2 into 4 3. 1 2 3 4 by, can I rub this? Chalo, I am going to rub this. So by 361 means 19 into 19, okay, equals to, now in place of 2 2 I have to write 1. You all remember this, here also, this also, by 19, okay, equals to 18 by 19. So this is the answer. This one, it is given in mixed fraction. So first we have to convert it into improper fraction. If you multiply and calculate it, you will get 3600, means 21 into 169, you know the process, plus 51, you will get 3600, 3600 divided, now 169. Acha, chalo, can I separate this according to this law? See, root over a by b equals to root over a upon root over b. Okay, I am going to apply this rule. So equals to, now tell me, 3600, it is very easy, no need to find the prime factors. Just 3600 can be written as 36 into 100, done, and 169 is 13 square, so 13 into 13. Now next line, now 36 can be written as 6 into 6, you all know, it is very easy, and 100 can be written as 10 into 10, understood now? That equals to 13 into 13. Okay, next line, what should I write? That in place of 2 6 I have to write 1, and in place of 2 10 I have to write 1 by 13, that is 60 by 30. Guys, again that 5625 is the number. There is a trick. Suppose if I ask you 55 square, do you know what to write? Just last 2 digit, if the ones place number like 65 square, like 75 square, if this kind of number has been given, no, so just last 2 digit is always 25. Then what should I write over there? Like 5 is there, no, so 5 next natural number is 6, 5 6 are 30, so we'll write over there 30. Like 6 next natural number
7, 6 7s are 42. Like 7 next natural number 8. 7 8s are 56. So have you noticed this? 5 6 2 5. So 5 6 2 5, that is 75 square. Or you can do the prime factors method. Okay. So here I can write that 75 square, no? So 75 into 75 directly I can write. I think if you understood this, na, like if I ask you 45 square, try to do it in your own, pause the video and do it. So I think you get it. So 4 next natural number is what? 5. 5 4s are 20, then last 2 digits is 25. So that is the way to find out the square of any number whose ones place number is 5. Okay. So here ones place number is 5. So we can easily find out. Chalo. Now 441 is 21 square. So 21 into 21, or you can do the prime factor equals to now 75 by 21. Okay. Now this can be cancelled. 7 3s are, and that is 3 2s are, 5s are, that is 25 by 7 is the answer. Guys, one more thing, I missed it actually. There is a common factor between these two numbers, so you can first simplify them, then you can do it. Like I am going to show you. This is another method, and another method I am showing this way. So 5000, that can be cancelled by 9. Okay na? So 9, this can be cancelled by 9. So 9 4s are 36 and 81, that means 9 9s are 81. And this also can be cancelled by 9. 9 6s are 54, 2 carry, 2 2 22, 9 2s are 18, then 45, 9 5s are 45. So answer is coming 625 by 49. That can be separate. Chalo, this and this now equals to 625, no? So 6 can be written as, tell me the which two consecutive numbers multiplication is 6? 2 and 3. 2 3s are 6. 2 3s are 6, no? So one can write 25 square. Why? Because I have told this method, no? 2 next natural number is 3. 2 3s are 6. 25 is the answer. So here I can write 25 into 25 by 7 into 7. That you all know. No need to do this. So that is 25 by 7 is the answer. I think this is the better method. You can follow this. Okay. So next question number 6. That first it is given in the again mixed fraction. So we have to write it in the improper fraction. 361 by 49. You can check the calculation. So we can separate this. Now 361. Now only I have done. Do you remember? That is 19 19. 361. So 19 into 19, and that is very easy. 7 into 7. That also I have done now only. So 19 by 7 is the answer. Now this one again mixed fraction. So if you multiply and then add, you will get this by 729. So separate them equals to. Now 17161. I have checked, actually this can be divisible by 131, guys. Okay. So it would come 131. 131 number is a big number, so be careful. So 131 into 131 by 729. That also you can do it. 9 is the divisible. If you add them, you will get 18. So it can be divisible by 9. So 9 से चलो 8 9s are 1s are. So फिर से 9 9. अब इसको simplify करके लिखोगे तो 9 can be written as 3 into 3. This 9. Now this 9 can be written as again 3 into 3. Now next this 9 also can be written as 3 into 3. ऐसे करोगे ना तुम लोगों का टाइम बच जाएगा, जल्दी जल्दी हो पाएगा. ओके, तो चलो फिर करते हैं. नेक्स्ट लाइन में आएगा इक्वल्स टू 131. 131 मीन्स 131 ही आएगा. और ये देखो 2 3 की जगह पे एक इंटू दिस, कितना पेयर बना 3. तो बस अब आंसर लिखो 131 by 27 इज द आंसर. ओके गाइज, वन मोर थिंग दैट 131 इज अ प्राइम नंबर. सो कुछ नहीं कर सकते, इसको तुम्हें चेक करके ही करना पड़ेगा. ओके, सो नेक्स्ट नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस इज इट वुड कम this, and that is 1444.
as you know again last is 25, so 506 को डिवाइड करके देखो कौन सी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर से हो रहा है ये, और नहीं तो देखो तुम्हें वही मेथड करना है कि इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करो और फिर करो। ओके, तो मुझे पता है एक्चुअली ये 22 इंटू 23 होगा, फिर भी देख लो 11 से जाएगा, 11 4 ज़ा 44 एंड 6 ज़ा, सो आप जाएगा ये 2 से, 2 ज़ा 3 ज़ा, अब देखो 11 2 ज़ा क्या है 22, सो 22 इंटू 23 करोगे तो क्या आएगा 506। मैंने कहा था ना कि जब कुछ ही देर मैंने पहले कहा कि ये जो नंबर है 506 को देखो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं, तो 22 एंड 23 से अगर होगा या आएगा तो ये स्क्वायर होगा 225 का, नहीं तो तुम प्राइम फैक्टर करके भी कर सकते हो ये। अब 144 जो है इसको अगर तुम करोगे तो ये 38 का आएगा, तो एक बार देख लो। सो यहाँ पे लिखो 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19, दिस कैन बी, अब ये तो 225 ही हो गया, अब यहाँ पे 2 के जगह पे 1 and 19, so 225 by 38 is the answer. Now question number 2. Question number 2, find the square root of the following decimal numbers. तो decimal number देखो दो प्रोसेस है, एक तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो अगर नंबर छोटा हुआ तो तुम्हें पता है उसका स्क्वायर, तो और नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो है ही हम लोगों के पास। तो देखो ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन एकदम सिमिलर जैसा है, लेकिन 3 नंबर में जो नंबर है ना वो एकदम अननोन बड़ा बड़ा नंबर है, तो इसमें हम डायरेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर सबको छोड़ दे बस हम नंबर चूज करें 9, तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो पहले ये करो, आप बताओ यहाँ पे जो नॉन जीरो नंबर है वो क्या है 9 है ना, तो 9 किसका स्क्वायर है 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 3 इंटू 3 का आएगा 9 आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि मैं एक बात याद रखो कि जो स्क्वायर नंबर होता है ना, सोचो कि 03 इंटू 03 मतलब 0.3, ओके। अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 होगा, डेसिमल प्लेस क्या है 4, तो मतलब यहाँ पे उसके बाद और 3 0 देने के बाद यहाँ पे ये आंसर आएगा, है ना। ठीक है, देखो यही आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर डेसिमल जो स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है, नंबर होगा उसका डेसिमल प्लेस क्या होगा 2 हो गया। तो मतलब एक बात याद रखना कि अगर स्क्वायर नंबर का डेसिमल प्लेस 4 होगा तो जो एक्चुअल नंबर है उसका डेसिमल प्लेस क्या होगा, उसका हाफ मतलब 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये तो मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया, तो बस क्या करना है यहाँ पे 0.03 इज द आंसर। अब इसको करने की कोशिश करो, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर नंबर एंड डेसिमल नंबर। तो पहले बताओ 81, नाउ एक बात बताओ 81 रूट क्या होगा, रूट 9 इंटू 9 है ना। तो इसका अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 9, बस हमें मिल गया। तो बस इसमें जब आंसर लिखेंगे ना तो क्या करेंगे, फिर इसका डेसिमल प्लेस काउंट करो 4, तो आंसर में क्या आना चाहिए 9 तो आएगा, और डेसिमल प्लेस कितना आएगा 2, क्योंकि 4 का हाफ क्या है 2, तो एक 0 लिख के आंसर कर दो। समझ में आ गया? बहुत ही ईजी है। अब इसका देखो 1 2 3 मतलब 6 टोटल है, तो डेसिमल प्लेस जो आंसर आएगा उसका कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। समझ में आ गया? 6 है, 6 का हाफ क्या है 3, तो 3 आना चाहिए, और नहीं तो पेयर बनाओ फिर भी मिल जाएगा। ऐसे देखो 1 2 3, तो आंसर का डेसिमल प्लेस क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो 2, तो यहाँ पे देखो 2, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 2 1, डू यू रिमेंबर, देखो ये कंसेक्यूटिव नंबर है 1 2 3 देन फिर से 2 1, मतलब 11 का स्क्वायर क्या है 1 2 1, देखो 2 नंबर है 2 11, इस चैप्टर में तुम लोग करे हो ऑलरेडी। फिर देखो 1 1 1 क्या आएगा 1 2 3 2 1, 1 1 1 1 का 4 1 मतलब 4 तक लिखना है, 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या है 3 तक है, तो ये जो नंबर है इसका अगर रूट सिर्फ इसका रूट करोगे तो क्या मिलेगा 1 1 1 इंटू 1 1 1। समझ में आ गया ना? तो आंसर आएगा 1 1 1। तो हमारा डेसिमल प्लेस क्या होना चाहिए 3, और नंबर भी 3 है, तो बस आंसर है 0.111 इज द आंसर। 4 नंबर में जो है वो है 7.29, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो एक तो प्रोसेस जो है वो 729 का पहले फाइंड आउट करो, ये 9 से करो, 9 8 ज़ा
वन ज़ा 9 से 9 ज़ा आ गया। अब इसका मतलब आएगा जो वो है 9, मतलब लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे कर लो फिर 7 29, अभी किया 27 आएगा एक्चुअली। तो ये 9 कैन बी रिटन एज 3 into 3, दिस 9 कैन बी रिटन एज 3 into 3 एंड दिस 9 ऑल्सो कैन बी रिटन एज 3 into 3। बस अब पेयर बनाओ 1 2 3 1 2 3, दैट इज 27। सो यहाँ पे 27 आ गया, मतलब 729 का रूट क्या है 27 आ गया। अब यहाँ पे जो करना है ना, यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि जो आंसर है उसको लिखना है। अब डेसिमल प्लेस क्या है इसमें 2 है, तो 2 का हाफ क्या है 1, तो इस जगह पे पॉइंट देना है। अब देखो यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस में 1 आ गया, समझ में आ गया ना। फिर से देखो 7.29 डेसिमल प्लेस क्या है 2 है, तो 2 का हाफ मतलब 1, तो आंसर में जो आएगा उसका डेसिमल प्लेस क्या होना चाहिए 1, तो ये आ गया। और नहीं तो इसको लॉन्ग डिवीजन में भी कर सकते हैं हम लोग 7.29। तो लॉन्ग डिवीजन में जो प्रोसेस है एक बार देख लो, ये मेथड भी हम एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। जब नंबर होता था 729 तब हम कौन सी साइड से आता था, हम लोग करते थे लास्ट से, मतलब राइट से लेफ्ट में ना। लेकिन जब यहां पे करेंगे तो डेसिमल प्लेस में क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट तक, राइट में जाएंगे, तो ये दोनों हो गया। और इसमें तो वही मेथड आएगा जो इसमें था, तो एक ही नंबर है तो बस लिखो। तो अब बताओ 2 से जाएगा क्योंकि 3 3 = 9, 2 2 = 4 हो गया। अब यहाँ पे 3 आएगा, पॉइंट मतलब यहाँ पे पॉइंट देना है। अब ये 2 नंबर एक साथ नीचे आएगा, 2 का डबल है 4, ओके। अब 4 हमें पता है ऑलरेडी आंसर, तो एक बार 7 से ही देख लेता हूँ। 7 7 = 49, 4 कैरिड, 7 4 = 28 एंड 4 32, 7 से हुआ 7, तो 7 से करेंगे तो 7 7 47, 7 = 329, सो बस तो आंसर आ गया 2.7। तो ऐसे भी कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो जो मैंने पहले दिखाया। तो जो मेथड तुम्हें इजी लगेगा वही करो। आई थिंक इस जैसे नंबर के लिए लॉन्ग डिवीजन ही बेटर मेथड है, ओके। चलो 3 नंबर, दिस इज द नंबर, सो आई हैव टू मेक द पेयर। सो डेसिमल प्लेस में क्या करना है, लेफ्ट से जाना है। और इसमें तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना है। तो 0.00053361, अब 1 2 3 4, तो 0 से मतलब 0 पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट तो डालो, 0 से 0 जाएगा मतलब यहाँ पे 0 लिखो, तो 2 नंबर नीचे आएगा मतलब 05। अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास 5 है, 05 मतलब 2 से जाएगा, 2 2 = 4, तो 1 आ गया। अब ये 2 नंबर नीचे आएगा, है ना, सो 3 3। अब 02 मतलब 2 का डबल क्या है 4, 4 यहाँ पे लिखो। नंबर जो होगा वो देखो, चेक करो, 3 से एक बार करो, 3 3 = 9, 4 3 = 12, 129, बहुत ही करीब नंबर है। मतलब 5 से करोगे तो बिगर हो जाएगा और 3 से करोगे तो और तो छोटा हो जाएगा, तो ये 4 से ही जाएगा, मतलब 3 से। सो 3 129, अब यहाँ पे आ गया 4, 1 कैरेट, दैट मीन्स 4 ओनली। अब ये 61 नीचे आएगा, 461। अब 23 का डबल क्या है, 23 का डबल है 46। अब बहुत ही ईजी है, 46 है, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 होगा तो ये 1 से जाएगा, तो 461 बस हो गया। तो आंसर है √this = 0.0231। देखो मैंने 1 नंबर क्यों नहीं करा है, क्योंकि 1 नंबर में जो था वो था 0.053361। तो अब अगर ये कर पाओगे तो ये भी होगा ना, बस यहाँ पे आंसर होना चाहिए 0.231, ठीक है, इसलिए मैंने 1 नंबर नहीं कराया। अब चलो नेक्स्ट 3 नंबर है, इसको फिर से बनाओ पेयर। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड में करना है, बहुत ही बड़ा नंबर है 0625। अब पेयर बनाओगे तो यहाँ पे देखो 1 2 हो गया और यहाँ पे 1 2, क्योंकि मैंने कहा था कि डेसिमल के बाद जो होगा वो लेफ्ट से पेयर बनाएंगे और डेसिमल के आगे मतलब जो नंबर होगा, इंटीजर पोर्शन होगा, जो होल पोर्शन होगा उसमें राइट से जाएंगे। मतलब हमेशा स्टार्ट कहाँ से, डेसिमल पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट से राइट में जाएंगे और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट में आएंगे। जो स्टार्ट करना है पेयर जब भी बनना है वो डेसिमल पॉइंट से बनाना है, ओके, उससे राइट और लेफ्ट जहां भी जाओ। चलो अब 1 मतलब 1 से ही जाएगा, 1 1 = 1,
अब 1 का डबल तो 2 हो गया, ये 50 नीचे आएगा। अब ये 2 से अगर करेंगे तो 44 आएगा, तो 6 अब पॉइंट हो गया, तो ये 2 नंबर नीचे आएगा 06। अब 12 का डबल जो है 24 है, 24 से 2 को करके देखते हैं एक बार, 2 2 4 48 484, यस चलो 2 4 2 अच्छा 2 4 3 से देखते हैं, 3 3 9 3 4 12 1 कैरेट 6 7, सो 729 इज बिगर हो रहा है, तो मतलब ये से जाएगा 2 2 4 8 4, ओके। अब 2 देन 2 1 122। अब 122 का डबल क्या है बताओ? 122 का डबल है 244, सो 244। अब ये जो नंबर है ये नीचे आएगा 25। अब 2 5 है, मतलब 5 से ट्राई करो, कुछ मत सोचो, 5 से ट्राई करो। 25 जा 5 5 जा 25 4 जा 22 मीन्स 12, ओके। सो सेम आ रहा है, तो 5 5 1 2 2 2 5, सो आंसर हमारा है 12.25 इज द आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट फोन नंबर है, देखो पहली पॉइंट मतलब हमें तो पॉइंट देना है। 37 है, तो 6 6 जा 36 आ गया ना, तो 1 आ गया, ओके। अब ये 45 जो है वो नीचे आएगा 4 5। देखो ये एग्जाम में तुम मत लिखना, ये समझाने के लिए मैं बार बार ऐसा करता हूँ, मतलब 2 नंबर नीचे आ रहा है 2 नंबर नीचे आ रहा है इसलिए करता हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो अब 146 का डबल है 12, अब 1 से ही जाएगा क्योंकि 2 से करोगे तो ये 200 समथिंग, मतलब 145 है, तो 1 से जाएगा 1 2 1, अब 4 2, अब ये 44 नीचे आएगा, मत करो इसको ऐसे। तो अब बताओ 61 का जो डबल होगा वो होगा 122। अब 122 मतलब अब 2 से करके देखो हो जाएगा शायद, 2 4 4 4 2 आ गया ना, सो 2 यहाँ पे 2 2 4 4 4 हो गया। तो इसका आंसर है रूट ओवर दिस इक्वल्स टू 0.612 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, फिर से मैंने ऑलरेडी बना के रखा है पेयर, तो 6 मतलब 2 2 जा 4 होगा, क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9 ज़्यादा हो गया, तो 2 आ गया। अब ये दोनों नंबर नीचे आएगा मतलब 10, अब 2 का डबल करोगे तो 4 होगा। अब बताओ 4 7 से करके देखता हूँ, 7 7 जा 49, 4 कैरेट 7 4 जा 28 एंड 4 32, बहुत ज़्यादा हो गया। 44 से करके देखता हूँ, 4 4 जा 16, 1 कैरेट 4 4 जा 16 17 176, यही होगा क्योंकि 5 से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 5 हाँ, तो 4 जा 176। अब माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा। अब 1 कैरेट मीन्स 8, 3 आ गया, 1 कैरेट 0। नाउ अब 09 आने से पहले अब यहाँ पे पॉइंट लिखना है, तो यहाँ पे 09 लिखो और 24 का डबल जो है 48। अब 40 देखो 09 है ना, 9 मतलब क्या है, आइदर 7 और 3 से चेक करना है। एक बार 7 से करो, बहुत ही बड़ा नंबर है तो 7 से करके देखता हूँ। 7 7 अगर आ गया तो बेटर, नहीं तो 3 से करेंगे। 7 7 जा 49, 4 कैरेट 7 8 जा 56 एंड 4 60 आ रहा है शायद, 4 7 4 जा 28 एंड 6 दैट इज 34, यस हो गया। सो 7 से होगा तो 3409, दैट्स इट। सो आंसर इज रूट ओवर दिस इक्वल्स 24.7 इज द आंसर। सो गाइस ये वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, ये 20 मिनट्स के ऊपर हो गया है, तो मैं जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है वो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सब मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा पार्ट 2 में कराएंगे। सो तब तक के लिए आई थिंक तुम्हें अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट भी करो, लाइक भी करो, और जो लोग मेरे चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि देखो अगर जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।